حضرات گرامی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت رسول کی گھٹی اپنے بچوں کو پلائیں، عظمت رسالت کانفرنس میں لائیں، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں اپنے بچوں کو لائیں، تاکہ ان کے دل میں بچپن سے محبت رسول پیدا ہو۔ اور سنو ہو سکتا ہے کوئی بہکانے والا آئے، اس لیے میرے امام نے تو بہت پہلے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے چور ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ایمان کے لٹیرے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے روٹیے ہیں جو ایمان کو لوٹنے کی کوشش راتوں دن کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں، ارے یار آخر بتاؤ تو صحیح، تمہاری رشتہ داری کہاں سے ہو گئی ہے، تمہارا تعلق کہاں سے ہو گیا ہے، تمہاری تعلق داری کہاں سے ہے، تمہارا رشتہ کہاں سے ہے۔ یہ ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہے۔ تم ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخر معاملہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، رشتہ کون سا ہے، تعلق کون سا ہے۔ سنو گردر کی کڑی کی سرزمین پر آنے والے سنی مسلمانوں، اگر تمہارے بیٹوں نے عظمت رسالت کانفرنس میں، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں اپنے آپ کی شرکت کو یقینی بنایا ہوگا اور علماء کرام کے بیانات کو سنا ہوگا، شورا کرام کی نعتیں سنی ہوگی، اور کسی اہل سنت والجماعت کے کسی مدرسے یا مکتب میں بچپن میں تعلیم حاصل کی ہوگی، ان علماء کرام کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے، شان کے ساتھ کہیں گے، ارے ظالم تمہیں پتہ نہیں ہے رشتہ داری کی تم بات کرتے ہو، ہمارا رشتہ کہاں سے ہے، ہمارا تعلق کہاں سے ہے، ہمارا رشتہ کس سے ہے، ہم ریلیٹڈ کس سے ہیں۔ ارے ظالم تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے رشتے کی بات ہے۔ سنو، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، ہاتھ کو اٹھا کر کے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج۔ حضرات اکرام، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، اپنے بچوں کو اسلام سے قریب کریں، اپنے بچوں کو علماء کرام سے قریب کریں، اپنے بچوں کو مسجد کے امام سے قریب کریں، آپ اپنے بچوں کو مسجد سے قریب کریں، اپنے بچوں کو مدرسے سے قریب کریں، تاکہ بچپن سے ان کے سینے میں محبت رسول پیدا ہو، بچپن سے ان کے سینے میں عشق رسول پیدا ہو، بچپن سے ان کے سینے میں عظمت رسول پیدا ہو۔ اور سنیں جب لوگ اعتراض کریں گے نا، تم جا کہاں رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے، تمہارا تعلق کہاں سے ہے، تم نے سیکھا کہاں سے ہے، تو تمہارا بیٹا جو عشق و محبت کا نعرہ لگانے والا، مسلک اعلیٰ حضرت کو جاننے اور ماننے والا، شان سے کہے گا، ارے ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم بریلی کے ماننے والے ہیں، بریلی کے ہم دیوانے ہیں، دیوانے، اور ہمارے لیے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری علی رحمہ کا ایک شعر ہی کافی ہے۔ ارے ظالم سن، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے۔ ہم تو پیارے آقا کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ سب کچھ پیارے آقا کی عظمت پر قربان کر دیں، ہماری جان پیارے آقا پر قربان ہے، ہماری عظمت کچھ بھی نہیں ہے پیارے آقا کی عظمت کے آگے۔ اس لیے حضرات گرامی، آپ اپنے بچوں کے سینوں میں عشق رسول کو پیدا کریں، لیکن یہ پیدا کب ہوگا، جب آپ اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں گے، جب آپ اپنے بچوں کو اسلام سے قریب کریں گے، جب اسلامی تعلیمات سے قریب کریں گے، شریعت محمدیہ سے آپ قریب کریں گے۔ لیکن حال کیا ہے، آج تو ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہم جلسوں میں آتے ہیں نا تو ہمارا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ ہم جلسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ کوئی ایک بہترین شاعر آئے گا جس کی آواز بڑی سریلی ہوگی، اس کی آواز میں بڑی لچک ہوگی، اس کو سننے کے بعد ہم مچل جائیں گے، اس کے بعد پیسے کو لٹا دیں گے، صبح جائیں گے، لوگ کہیں گے کیا ہوا، کہیں یار جلسے میں گئے تھے بڑا مزہ آ گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یار یہ جلسہ مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسہ صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسہ صرف آ کر کے رات بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسہ تو اس لیے ہے کہ ہمارے وہ بڑے لوگ جنہیں مدرسے میں جانے کی فرصت نہیں، مدرسے میں جانے کا موقع نہیں، وہ بھی آ کر کے یہاں پر بیٹھے تاکہ دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں، اس میں دین کو حاصل کر سکیں۔ لیکن حضرات گرامی، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، آج ہم علم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہم اپنے بچوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج باپ کے سامنے اس کا نوجوان بیٹا فجر کے وقت بستر پر پڑا ہوتا ہے، لیکن باپ کے سر پر چوں بھی نہیں رینگتی کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے نہیں جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر اسے جہنم میں
डाल दिया जाए। अरे यार ये कोई मजाक नहीं है। याद रखना, आज हमने जन्नत को बहुत सस्ता बना लिया है और जहन्नम के बारे में हमें कोई फिक्र नहीं होती, इसलिए कि हमने ऐसी ऐसी शायरी सुन ली है, ऐसे ऐसी तकरीर सुन ली है, ऐसे ऐसे वाकयात सुन लिए हैं। एक बार आपने नाम लिया आपका बेड़ा पार हो जाएगा, एक शेर सुन लिया आप कामयाब हो जाएंगे। यार ये बहुत बड़ा धोखा है। याद रखना, ये शायरी भी काम आएगी, ये बयान भी काम आएगा, ये नाम लेना भी काम आएगा, लेकिन कब? जब आपका ईमान मजबूत होगा और अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर आप अमल करने वाले होंगे। वरना याद रखना, जो जहन्नम अल्लाह ने बनाई है ना, वो जहन्नम में सिर्फ जानवरों को नहीं डाला जाएगा, जानवर तो जाएंगे ही नहीं, बल्कि उस जहन्नम में तो बाकायदा जिन्नातों को डाला जाएगा, लेकिन जिन्नात के साथ साथ इंसानों को भी डाला जाएगा, पत्थरों को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ने तो वादा फरमाया है, लामलान्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, मैं जरूर जरूर जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा। और सिर्फ बात इतनी सी नहीं है हज़रात गिरामी, आप आइए मैं बड़ी तेजी के साथ एक टुकू को आगे बढ़ाता हूँ। इमाम गज़ाली के एक वाक़े को कोट करना चाहता हूँ। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी इबादत और रियासत का दौर था, मैं उस वक्त जंगलों से गुजर रहा था। जंगलों से गुजरते 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 मैंने देखा एक जगह पर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहां पर एक पत्थर का टुकड़ा था, चट्टान का एक टुकड़ा था, और उस चट्टान के छोटे से टुकड़े से बाकायदा 12 चश्मे पानी के जारी हो रहे थे। मैं देख करके हैरत में पड़ गया कि आखिर माजरा क्या है। ये चट्टान का छोटा सा टुकड़ा है, ये पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है, और इससे 12 चश्मे पानी के जारी हो गए हैं। इमाम गज़ाली आगे लिखते हैं, ये मेरी इबादत और रियासत का दौर था। उस वक्त मैं जंगलों में जिंदगी गुजार रहा था। चट्टान का छोटा सा टुकड़ा है, उससे 12 चश्मे पानी के जारी हो रहे हैं। हज़रात गिरामी, हमें तो एहसास नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक गुनाहों में हम मुलविस रहते हैं। फजर का वक्त हमारा गुजर जाता है सोते हुए, ज़ोहर का वक्त बाजार में गुजर जाता है, असर मगरिब हम रोड पर गुजार देते हैं, इशा का वक्त हमारा बिस्तर पर गुजर जाता है। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद आप अंदाजा लगाइए मस्जिद में कितनी सब होती है, और जुमा के दिन पूरी मस्जिद फुल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग नमाज पढ़ने 5 टाइम नहीं जाते हैं। क्या आपको पता नहीं है नमाज पढ़ना फर्ज है? यार ये कितनी आसान चीज आपने बना रखी है, कितनी आसानी के साथ नमाजों को छोड़ देते हैं। हमारा नौजवान बेटा बाकायदा बिस्तर पर हमारी निगाहों के सामने पड़ा होता है, उसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल होता है। एक बाप की निगाहों के सामने और एक माँ की निगाहों के सामने उसकी जवान बेटी बाकायदा मोबाइल को लेकर के न जाने किससे व्हाट्सएप पर बातें करने के लिए छत पर चली जाती है, और सहेली के नाम पर घंटे वो बातों करती रहती है, लेकिन माँ के सर पर जो भी नहीं रेंगती। अरे यार, ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत है, ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत है जिसको एहसास ना हो कि हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करना चाहिए। यार फिर बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है, बल्कि बच्चों की अच्छी तरबियत करना जरूरी है, बच्चों को इस्लाम की बातें सिखाना जरूरी है, बच्चों को अखलाक सिखाना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बच्चों को सिखाओ तो पहले अखलाक सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ तो अदब सिखाओ। तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज की तलकीन करो, तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ। अगर तुम्हारा बेटा आकिल और बालिग है, तुम्हारी बेटी आकिला और बालिगा है, तो किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। ये मसला तुम्हें बताना पड़ेगा, ये मसला तुम्हें सीखना पड़ेगा और अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। लेकिन नहीं नहीं जी, हम तो चौराहे पर बैठ गए, देवीगंज में जाकर के चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठ गए और शान के साथ कॉलर को टाइट करके कहते हैं, यार हमारे 3 बेटे हैं, 2 बेटे सऊदी चले गए हैं, एक बेटा मुंबई से 50,000 भेजता है, 2 बेटे सऊदी से 50,000 भेजते हैं, 3 बेटे 1.5 लाख की आमदनी है। कॉलर को टाइट करके बाप बड़ी शान के साथ कहता है, मेरे 3 बेटे 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम है, तुम्हारी दुआएं हैं कि तुम्हारे बेटे 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, अल्लाह और ज्यादा बरकत अता फरमाए। लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रख करके एहसास करना, गुरुद्वारा गली के सुन्नी मुसलमानों, अगर वाकई हम मुसलमान हैं और कुरान और हदीस के मानने वाले हैं और प्यारे आका के चाहने और मानने वाले हैं, और हम कहते हैं दिल में है नबी नबी, तो आखिर नमाज हफ्ते में कभी कभी क्यों पढ़ते हुए नजर आते हैं? आखिर दिल में नबी नबी है तो नमाज हफ्ते में कभी कभी क्यों पढ़ी जाती है? अरे यार, क्या तुम्हें पता नहीं है? क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। अरे यार, क्या आपको पता नहीं है? ये किसी के बाप का फरमान नहीं है, ये रसूल पाक का फरमान है। आप फातिहा कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप लंगर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप चादर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप उर्स मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखना, ये चीजें मुस्तहब्बात में से हैं, फराइज़ व वाजिबात में से नहीं है। अगर
अगर ये चीजें आपने नहीं की तब भी आपको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर बंदा गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, बंदा आसाम में मुब्तला हो सकता है। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन से करीब करे, अपने बच्चों को नमाज से करीब करे। तुम शान के साथ कहते हो तुम्हारे 3 बेटे हैं ना, 1.5 लाख की इनकम है, कॉलर को टाइट करके चौराहे पर बैठ करके चाय की बाकायदा कश को लेने के बाद टी मारते हो, शर्म आनी चाहिए। अरे यार शान तो उस वक्त तुम्हारी बढ़ जाती, कॉलर को टाइट करते शान के साथ कहते अरे यार सुनो मेरे 3 बेटे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के तीनों बेटे नमाजी हैं, तीनों बेटे नमाज के पाबंद हैं, तीनों बेटे सुन्नत रसूल को अपने चेहरे पर सजाने वाले हैं, तीनों बेटे प्यारे आका के फरमान को मानने वाले हैं, तीनों बेटे प्यारे आका के फरमान पर अमल करने वाले हैं। अगर ये अंदाज तुम्हारा अंदाज होता तो तुम्हारा कहना भी सही होता, तुम्हारा करना भी सही होता। हमें कहने की जरूरत पेश ना आती, हमें नारा लगाने की जरूरत पेश ना आती, बल्कि जब अल्लाह के घर से अय्या सलाह की आवाज आती, हमारे कदम मस्जिद के जाने गामजन होते, जमाना देखता, कह करके देख करके कहने पर मजबूर हो जाता, देखो ये हुसैनी गुलाम जा रहा है, देखो ये गौसे पाक कमाने वाला जा रहा है, देखो ये रसा कमाने वाला जा रहा है, देखो ये गरीब नमाज का खाने वाला जा रहा है। आप कहें कि हम गरीब नमाज के मानने वाले हैं, आप कहें कि हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, लेकिन नमाज से आपको मतलब ना हो, आपको रोजे से मतलब ना हो, आपको अल्लाह उसके रसूल के फरामीन से मतलब ना हो। याद रखना जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी दे बंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी अल्लाह ने दी है ताकि अल्लाह की बंदगी की जाए, और जिस जिंदगी में अल्लाह की बंदगी नहीं होती उसे जिंदगी नहीं कहते, बल्कि वो तो शर्मिंदगी होती है। लेकिन हमारा एहसास मर चुका है, हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हम नाम के मुसलमान है, अपना नाम अच्छा अच्छा हमने मुसलमान रख लिया है, लेकिन हमारा किरदार तो यहूदियों जैसा है, हमारा किरदार तो खैरों जैसा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूर, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई यहूद। आज हमारा कैरेक्टर ऐसा है, आज हमारा किरदार ऐसा है, आज हमारे मामलात ऐसे हैं कि दीगर कौमें हमें देख करके हंसी हुई नजर आती है। आखिर वजह क्या है? जलसा तो हर साल सुनते हुए नजर आते हैं, उलमाए किराम के बयान तो हम हर साल सुनते हुए नजर आते हैं, जुमा में उलमाए किराम की तकरीर तो हम हर हफ्ते सुनते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम जैसे पहले थे आज 10 साल के बाद भी वैसे हैं, 20 साल के बाद भी वैसे हैं, 30 साल गुजर गए लेकिन वैसे ही। आखिर हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती? आखिर हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आता? आखिर हमारे अंदर चेंजिंग क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमने तो ये नियत कर ली है हमें जलसे में जाना है, सुनना तो उलमाए किराम की है, लेकिन करना अपने मन की है। अरे यार छोड़ दो दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है तू जो दिन का ये सफर है। याद रखना ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। यहाँ पर आप दुनिया में चंद दिन जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं, एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, रूह कब्र से उसरी से परवाज होगी, बंदा कब्र में जाएगा, और कब्र में जाने के बाद मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। वही तुम्हारा दोस्त नौजवान, खास तौर से मेरे मुखातिब है, तुम्हारा नौजवान दोस्त जिसके कान में एक एयरफोन लगा करके दूसरा एयरफोन अपने कान में लगा करके पूरी पूरी रात तुम याशी किया करते थे, न जाने कैसे कैसे फाशुरिया तस्वीरें देखते थे, हमारी बेटियां न जाने कैसी कैसी गंदी तस्वीरें मोबाइल पर देखती थी, न जाने कैसे कैसे गाने सुना करते थे। यार आज कब्र में जाने के बाद तुम्हारा दोस्त 1 घंटा कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार कब्र में रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज वो तुम्हारे दोस्त जो मिट्टी कब्र से उठाते हैं, जो वही मिट्टी तुम्हारे कब्र पर झाड़ करके वापस चले जाते हैं। बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहाँ तो 5 जाएंगे 4 वापस चले आते हैं। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद आज कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो अंधेरा घर है, अकेली जा दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अगर मौत का फरिश्ता आता है ना तो 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। फैज़ा जाजुलुम ला यस्ताखिरून वसातुम वला यस्तक़दिमून, 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती, 1 सेकंड में तक़दीम व ताख़ीर नहीं होती। रूह कब्ज़ उज़री से परवास कर जाती है, बंदा मौत की घाट उतार दिया जाता है, बंदा यहाँ से रुखसत हो जाता है, बंदा यहाँ से वफात करके विसाल करके चला जाता है। लेकिन हज़रात गिरामी कब्र में जाने के बाद उसे एहसास होता है कि हमने दुनिया में किया क्या है, लेकिन उसे एहसास दुनिया में क्यों नहीं होता। हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, अपने हालात को बदले, अपने अंदाज को बदले, अपने किरदार को बदलने
بدلने की कोशिश करें, हालात बड़े नागुफ्ताफे हैं, हालात बड़े नासाजगार हैं, आज अपने हालात को बदलने का इरादा लेकर के इस सरजमीन पर बैठे हो तो बड़ी तेजी के साथ मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। बस इमाम गजाली के उस वाक़े को मैं कोट कर दूं। इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते से गुजरते गुजरते मामला ये हुआ कि एक छोटा चट्टान का टुकड़ा है, एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है, उससे पानी के 12 चश्मे जारी हो रहे थे। मैं देख करके ताजुब कर रहा था, लेकिन ये ताजुब इनकार के लिए नहीं था। इतने में अल्लाह ने उस छोटे से पत्थर को कुव्वत गोयाई अता कर दी, बोलने की ताकत और सलाहियत अता कर दी, बोलने की सकत अता फरमा दी। पत्थर ने अपने ज़बान हाल से कहा, ऐ गजाली, क्या तुम्हें ताज्जुब है कि मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे जारी है, मैं चट्टान का छोटा सा टुकड़ा हूँ, ये देख करके तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? इमाम गजाली ने कहा, हाँ हाँ, एक छोटे से टुकड़े मुझे ताज्जुब तो है, लेकिन ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि तेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे कैसे जारी है। ताज्जुब इनकार वाला नहीं है, इसलिए मैं जानता हूँ कि अल्लाह तो कादिर है, और वो तो ऐसा कादिर मुतलक है कि पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को भी अल्लाह रिस्क अता फरमाता है। तो चट्टान का टुकड़ा है, तेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे जारी है, इसमें मुझे ताज्जुब तो है, लेकिन ये इनकार के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह की किबरियाई पर ताज्जुब है, उसकी सनात पर ताज्जुब है, उसकी शान पर ताज्जुब है कि अल्लाह की कैसी कैसी कारीगरी है। हजरत गिरामी इतना कहना था, पत्थर ने कहा, छोटे से चट्टान के टुकड़े ने कहा, ऐ गजाली, शायद तुझे खबर ना हो, तू सोच रहा हो कि मेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे जारी है, मेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे जारी है, जिससे बाकायदा ये नहरें जारी हो गई है। इमाम गजाली ने कहा, हाँ हाँ, मुझे लगता है तेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे जारी है, जिससे बाकायदा ये नहरें और नाले जारी हो गए हैं। उस चट्टान के छोटे से टुकड़े ने कहा था, उस पत्थर के छोटे से टुकड़े ने कहा था, ऐ गजाली, मामला ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा है, बल्कि हकीकत तो ये है, जिस तरीके से आज इस रास्ते से गुजरा है, इसी तरीके से चंद रोज कबल इसी रास्ते से एक अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाला कारी कुरान गुजरा था, हाफिज कुरान गुजरा था। उसने गुजरते गुजरते कुरान की एक आयत करीमा पढ़ी थी, लामलाना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, मैं जरूर जरूर इंसान और जिन्नात से जहन्नम को भर दूंगा। इस आयत करीमा को पढ़ते पढ़ते वो गुजर रहा था, और जैसे मेरे करीब आया, बिल्कुल मेरे करीब से गुजरने लगा, उस कारी कुरान ने आयत करीमा की तिलावत करते करते मेरे सामने आयत करीमा के इस टुकड़े को पढ़ा था, वकूदुहुन नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन जब अल्लाह जहन्नम को भड़काने का इरादा फरमाएगा, जहन्नम से आवाज आएगी, तो आग को भड़काने के लिए जिस तरीके से अल्लाह इंसान को डालेगा, इसी तरीके से पत्थरों को भी जहन्नम में डालेगा। वकूदुहुन नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान भी है, उस आग का ईंधन पत्थर भी है। हज़रात गिरामी, पत्थर ने बयान किया, ज़बाने हाल से कहा। इमाम गजाली तहरीर फरमाते हैं, पत्थर बोल पड़ा, ऐ गजाली, जैसे मैंने कुरान की इस आयत करीमा को सुना, उस आग का ईंधन जिस तरीके से जिन्नात होंगे, जिस तरीके से इंसान होंगे, उसी तरीके से अल्लाह पत्थरों को भी जहन्नम में डालेगा। मैं तड़प गया, मेरे अंदर एक लर्जा पैदा हुआ, मैं सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए पहले छोटी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, पहले छोटी छोटी लकड़ियां जलाई जाती है, फिर उससे बड़ी लकड़ियों को भड़काया जाता है। इसी तरीके से कल जहन्नम की आग को भड़काने के लिए जब बड़ी बड़ी जहन्नम के बाकायदा जहन्नम में पत्थर के टुकड़े को डाला जाएगा, बड़ी बड़ी चट्टान को डाला जाएगा। ऐ गजाली, जैसे मैंने आयत करीमा को सुना कि उस आग का ईंधन इंसान के साथ साथ पत्थर भी है, वकूदुहुन नास वल हिजारा, ऐ गजाली, मैं तड़प गया, मेरे अंदर लर्जा पैदा हुआ, और मेरे अंदर से बाकायदा चश्मे, जो पानी के तुम समझ रहे हो, ये पानी के चश्मे नहीं, ये मेरे आंसू हैं, जिसकी बुनियाद पर पानी की तरह ये चश्मे जारी हो गए हैं। मेरे अंदर एक तड़प पैदा हुई, कहीं ऐसा ना हो जब जहन्नम की आग को भड़काने के लिए जहन्नम में बाकायदा चट्टान को डाला जाए, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े को डाला जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझ जैसे छोटे छोटे टुकड़े को भी जहन्नम में डाल दिया जाए। इतना सुन करके मैं तड़प गया, मैं लरस गया। इमाम गजाली फरमाते हैं, इतना सुनना तो मेरी आंखों में अश्क जारी हो गए, दाढ़ी मुबारक तर हो गई कि ए गजाली, ये पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है जिसके अंदर खुदा का इतना खौफ है कि खुदा की खशियत की वजह से रोते रोते इसके अंदर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। ए गजाली, तो इंसान है, जरा सोच तो सही, तेरे अंदर खुदा का खौफ कितना है। आज सुबह से शाम तक ना जाने कितनी अय्यारी मकारी हम करें, सुबह से शाम तक किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए हम
تیار ہو جائے, کسی کی مال کو حلف کرنے کی فراق میں ہم رہے, کسی کی باقاعدہ بہن بیٹی پر غلط نگاہ اٹھا کر کے ہم دیکھیں, باقاعدہ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی ہم کریں, اپنے بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی ہم کریں, اپنے بھائیوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور بڑی شان کے ساتھ آپ سوچیں کہ نعرہ لگا کر کے آپ جنت میں چلے جائیں گے. ارے یار یہ غلط فہمی ہے, ابھی بھی وقت ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو, خدا کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرو, اس کی خشیت کو اپنے سینے میں پیدا کرو, اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ. اے مولا ہم گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں, اے مولا ہم سیاشیار ہیں, اے مولا نہ جانے ہم سے کتنی غلطیاں رات کے سناٹے میں ہوئی ہیں. اے مولا قبر کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے, ہمارے جسم بڑے نازک ہیں, مئی جون کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ڈاکٹر کا انجیکشن ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ایک کانٹے کا چبھنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ایک پتھر کی ٹھوکر ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اے مولا ہم قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے مولا ہمارے جسم بڑے نازک ہیں, خدا کا معاملہ تو یہ ہے, قبر میں جانے کے بعد جو بندہ جائے گا تو بندے کا معاملہ تو یہ ہوگا, اگر بندے کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی, اعمال صالحہ نہیں ہوں گے, تو سنو سنو, کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور, بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے, وہاں تو پیارے آقا کی شان کام آنے والی ہے, پیارے آقا کی ذات کام آنے والی ہے. اس لیے پیارے آقا کی عظمت کو اپنے سینے میں بسائے, پیارے آقا کے فرمان پر عمل کرے, اور اس کے بعد حشر کا معاملہ تو اور عجیب و غریب ہے. 50,000 سال کا دن سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی, اور عجیب و غریب کیفیت ہے. باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, خدائے قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل حساب میں ہے. اس لیے حضرات گرامی اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اپنے عمل کا جائزہ لیں, کبھی بستر پر جانے کے بعد اپنا محاسبہ اور مراقبہ کریں, اور فرائض کی ادائیگی کی کوشش کریں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو, جس چیز سے منع کرتے اس سے رک جاؤ, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. آخر میں آئیے سارے لوگ مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی مل کر کے پڑھیں. اے مولا ہم گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں, لیکن آج ہمارے نیتا جی نے عظمت مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی ہے. اس میں مولا ہم تمام علماء کرام کی موجودگی میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں, اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. سارے لوگ مل کر کے پڑھیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, واخر کلمات الحمدللہ رب العالمین.